آزاد کشمیر صدنوتی کی اہم شرح پختہ نہ ہونے پر عوام علاقہ کی کثیر تعداد نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ یہ سڑک تراڑ کھل سے ڈنا پوٹھی میر خان سے ہوتے ہوئے پدری ایروٹا سے گورا دریک سے گزر کر پلندری روڈ پہ ملتی ہے اور دوسری جانب یہی سڑک پیر گلی اور نکر سے گزر کر پلندری جیل کے پاس ملتی ہے۔ یہ سڑک 3 حلقوں کو ملاتی ہے۔ اسی روڈ پر 5 سیاحتی مقامات آتے ہیں جن میں ہمارے قوم کے ہیرو سپاہی غازی مقبول حسین کا مقبرہ بھی شامل ہے جو 40 سال تک انڈیا کی جیل میں رہے۔ لیفٹیننٹ فیصل شہید کا مقبرہ، ڈنا دیار، ٹورسٹ پوائنٹ، ایروٹا اور پیر گلی، یہ 5 سیاحتی مقامات شامل ہیں جن پر پہنچنے کے لیے اسی سڑک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایروٹا سے گورا تک 6 کلومیٹر سڑک آج تک پختہ نہیں ہوئی۔ 2005 میں اس سڑک پر سولنگ کی گئی۔ یہ سڑک آزادی سے قبل مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں گھوڑوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی لیکن آج تک پختہ نہیں کروائی گئی۔ اسی سڑک پر محی الدین اسلامی یونیورسٹی بھی موجود ہے۔ اسٹوڈنٹس کو اسی سڑک پر سفر کر کے آنا پڑتا ہے۔ حکومتیں تو دعوے کرتی ہیں سیاحتی مقامات کو بنانے کا، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے سہولیات کا فقدان ہے جو سیاحوں کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ سیاستدان الیکشن سے قبل عوام کو سبز باغ دکھا کر منزل عام سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسلام صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ بخود نفس نفیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جہاں ایروٹا پدری کے مقام پر تشریف لائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غریب لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے یہ حق ادا کر دیا۔ یہ ڈنا پوٹھی میر خان پدری ایروٹا ٹورزم کے حوالے سے ضلع صدنوتی کا سب سے خوبصورت مقام ہے، اور یہ اس روڈ کو 30 سال سے مسلسل اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال عوامی تحریک حقوق ڈنا پوٹھی میر خان کے زیر اہتمام جو ایروٹا سے ڈنا پوٹھی میر خان کی طرف روڈ ہے، اس کی مینٹیننس عوام علاقہ نے خود فنڈنگ کر کے کی تھی، اور وہ بھی ہم حکمرانوں کو بتانا چاہتے تھے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں یہ آپ کے منہ پر تماچا ہے۔ لیکن جو بھی آیا، پہلے ڈاکٹر صاحب تھے، اب محمد حسین صاحب ہیں، اس علاقے کو جان بوجھ کر کے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اس کے قریب ترین یہ حلقہ 2 تراڑکھل اور بلوچ ہے، وہاں مسلسل روڈوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، اور 30 سالوں سے اس روڈ پر کسی طرح کا بھی کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم آج یہ احتجاج کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج یہ احتجاج کا آغاز ہے، یہ یہیں نہیں رکے گا، پھر پلندری تک، اور پھر اسی طرح پلندری کی جو قیادت اسلام صاحب اور دیگر جو بھی ان کو مناسب سمجھیں گے، جیسے یہ بولیں گے، ہمیں دارالحکومت تک بھی جانا پڑا، دھرنا بھی دینا پڑا تو دیں گے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت آمدہ بجٹ کے اندر اس پوری روڈ کو، کیونکہ یہ واحد ڈسٹرکٹ کو ملانے والی یہ ہماری روڈ ہے، اور یہاں سب سے شارٹ روٹ ہے یہ ہمارے لیے۔ یہاں ہم جب پلندری جاتے ہیں تو پہلے ٹنگی گلا، پھر تراڑکھل، پھر وہاں سے پلندری، پورا 1 دن لگ جاتا ہے۔ تو آج کے اس ترقیاتی دور میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روڈ ہے بالخصوص محمد حسین صاحب اور حکومت آزاد کشمیر اس کو بجٹ میں شامل کر کے یہ محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ ہماری یہ روڈ جو ہے یہ زمانے سے ایسے ہے، جو اس سے پہلے ہمارے لیڈر آئے، ڈاکٹر صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی وعدے کیے۔ اب محمد حسین صاحب آئے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے محمد حسین صاحب کو کہ بھائی ہم نے آپ کو یہاں سے جتا کر بھیجا ہے، اپنے پولیس اسٹیشن سے جتا کر، اور یہاں سے ہم ہر لیڈر کو یہاں جتا کر بھیجتے رہے، اور ہماری کسی نے بات نہیں سنی۔ یہ آپ 2 مہینے کا، 1 مہینے کا، 5 مہینے کا بالکل ایک چانسا دے کر آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ قوم، یہ آپ آج یاد رکھیں کہ جب یہ قوم سمجھ گئی ہے، اگر اس قوم کی بات سمجھ اس کے دماغ میں بات آ گئی ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے، اور ہم لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ کیوں ہمارے ووٹ کی یہ ایسے گلیوں میں گھمایا جاتا ہے؟ بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں یہ بتایا جائے۔ یہ روڈ مشکل نہیں ہے، اگر ہم آج یہ ہمارے بجٹ سے نکل گئی ہے، اور اس کے بعد یہ آپ یاد رکھ لیں کہ یہ جو جتنی بھی یہ قوم ہے، یہ
जवान लोग हैं, इनको हम कभी नहीं रोक पाएंगे, कोई भी आदमी इनको कभी रोक नहीं पाएगा। आज हीरोटा के मकाम पे आपका ये जो दरीना रोड का मसला है, इसमें इज़हार यकजहती के लिए मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। मेरा शुक्रिया अदा करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, और अवामी नुमाइंदा होने की हैसियत से, और फिर मैं चूँकि इस हल्के से इलेक्शन लड़ा हूँ, तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लोगों के जो जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल करने के लिए जदोजहद करूँ, और ये मेरा अवलीन ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। ये जो आपकी रोड है, ये आपका एक दरीना मसला है, और अरसा 30 साल से आप इस रोड पे चल रहे हैं। आपको तो खैर मुझे आप पे अफसोस इसलिए नहीं हो रहा कि आप डिज़र्व करते हैं या आप इस रोड पे सफ़र करें, लेकिन मैंने अभी कोई बुजुर्ग 2-3 देखे जो तकरीबन एक मन तकरीबन के उन्होंने उठाए हुए थे थैले, अपने कंधों पे वो चल रहे थे। तो मैं ये समझ रहा था कि यहाँ पे अगर कोई नौजवान हूँ और उनके अंदर अगर ये गैरत हो, तो मैं समझता हूँ कि वो उस दिन तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस रोड का काम नहीं शुरू होगा। और इसी तहरीक के लिए मैं आज आया हूँ कि एक तहरीक का आगाज़ जहाँ से करें हम। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को 10 तारीख को पलंदरी के मकाम पे हमारा ये आपकी ये जो रोड है नक्कर और मुर्शिदाबाद तक, ये जो आपकी एक बड़ी रोड है, उसके बाद बेतरा टंगी वाला जो रोड है और त्राड़खर रोड है, ये जो 3 बड़ी रोड्स हैं, इनके हवाले से हम एक भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं। और उस एहतजाज के साथ फिर इंशाअल्लाह हमने ये प्लानिंग की है कि जब तक इन रोडों पे काम शुरू नहीं होगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। और उसके लिए हमें जहाँ तक जाना पड़ा, हमें मुजफ्फराबाद तक मार्च करना पड़ा, हमें आज़ाद पतन पुल ब्लॉक करना पड़ा, या हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी। जिस तरह से भी हम इंतज़ामिया को, आज़ाद हुकूमत को मजबूर कर सके अपने इन दरीना मसाइल को हल करने के लिए, वो हम करेंगे। और इंशाअल्लाह उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन मनसूबों पे काम शुरू नहीं होगा। आप सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप सब लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, आइंदा जुमे को अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं, और सिर्फ इस तरह नहीं कि बस आधा घंटा वहाँ पे खड़े होकर वापस आ जाएं। अपने साथ एक पूरी टीम लेके आएँ। कोशिश करें कि इस सारे एरिए से कोई भी नौजवान, कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा यहाँ पे घर में ना रहे, वो उस दिन एहतजाज में शिरकत करे, ताकि हम ये बावर करवा सकें कि जो कौम अपने हक लेने के लिए उठती है वो फिर कभी भी अपना हक लिए बगैर वापस नहीं आती। तो इस पे मेरी आप सबसे गुजारिश है, और इंशाअल्लाह आपके हर मसले में हम आपके साथ हैं। मैं, मेरी पूरी टीम, मेरी पूरी जमात के जितने भी लोग हैं, हम सारे आपके साथ हर माज पे और हर तरह से आपकी सपोर्ट करेंगे, और हर माज पे आप हमें पाएंगे। कि हम यहाँ पे एक एहतजाज कर रहे हैं कि ये जो रोड है जो पलंदरी जाती है, इस रोड पे काम नहीं शुरू हो रहा है, और ना ही कमिटमेंट के मुताबिक जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर मैं इस रोड को दूंगा। तो 2 महीने के अभी उनका 1.5 साल हो गया, इसको बजट में नहीं डाला जा रहा है। तो ये चूँकि रोड पलंदरी के लिए, इस पूरे एरिए के लिए एक तो सियाती मकाम है, इसके साथ पोठी मीर खान लगता है, दियार लगता है, और उसके बाद बंड का खूबसूरत मकाम है, और बड़ी तादाद यहाँ पर लोगों की चूँकि रहती है, ज़्यादातर गरीब लोग हैं, पलंदरी से उनका डायरेक्ट लिंक है। तो ये हमारी सब की ये ज़रूरत भी है, ये ख्वाहिश भी, और हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी मोहम्मद हुसैन साहब ने इलेक्शन के दिनों में कि ये मैं रोड दूंगा, लेकिन मे भी कि वो शायद भूल गए, या इस तरह की जो खबरें भी आ रही हैं कि इस मनसूबे के काट के कहीं और दिया गया है। अगर ऐसी कोई खबर है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, और सारे अवाम इलाका और बहुत सारे हमारे दोस्त अभी भी आ रहे हैं, वो सब ये मुश्तरका हमारा ये एहतजाज है कि इस मनसूबे पर बिलफौर काम शुरू किया जाए, ताकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा तादाद में आवाम है, वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। मेरे बुजुर्गों और नौजवानों, मैं और आप सारे जो यहाँ पे मौजूद हैं, हमारा किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक़, कोई सियासी जमात की इससे मोहब्बत ज़रूर है और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं और आप इस सियासी सिस्टम पे गौर करें जिसके अंदर मैं और आप जी रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, और चमकती पेशानियों वाले नौजवान भी मुस्तकबिल के जो हमारे सितारे हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान का सियासी सिस्टम है, इसके अंदर चंद ख़ानदान हैं जो अपनी औलादों को और अपनी नस्लों को पाल रहे हैं, और फिर मैं और आप जो है हमको इस्तेमाल किया जाता है मखसूस 5 साल के बाद, और फिर हम नारे लगाते हैं इनके, आगे बढ़कर एक दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश करते हैं, और जब ये 5 साल के बाद वापस चले जाते हैं तो फिर हम सर जोड़ के बैठते हैं कि अगले 5 साल हमने क्या करना है। आप अगर मुजफ्फराबाद से शुरू करें, इस सियासी सिस्टम का तज्जिया करें, जनाब फारूक हैदर साहब के वालिद मोहतरम राजा हैदर साहब सियासत में रहे हैं, उससे ज़रा नीचे आ जाएं, सरदार कयूम साहब के बाद सरदार अतीक साहब और उनके बेटे उस्मान अतीक साहब सियासत में आ गए। हमारी तीसरी नस्ल इनकी तीसरी नस्ल की खिदमत कर रही है। उससे ज़रा नीचे आ जाएं, हमारे जनाब सरदार इब्राहिम साहब के बेटे खालिद इब्राहिम साहब सियासत में रहे, और आजकल हसन इब्राहिम साहब सियासत में हैं। अगर आप ज़रा सुगनती के अंदर आ जाएं, कर्नल खान मोहम्मद खान साहब, जनाब नकी खान साहब और नजीब नकी खान साहब,
मोहम्मद हुसैन साहब सियासत में हैं तो दूसरी तरफ अमदान उनका पोता है, वो भी सियासत के अंदर मौजूद है। हमारे जो नौजवान नस्ल है उस पर हुकूमत के लिए वो तौर पर तैयार है। अगर ऊपर वाले हल्के में आ जाएं, इशफाक साहब, उसके बाद फारूक साहब और आकिफ फारूक साहब भी हमारे बच्चों पे हुकूमत करने के लिए तैयार हैं। जरा आगे आ जाएं आप तो आप देखेंगे कि अख्तर रब्बानी साहब सियासत में मौजूद थे, उनके बेटे जनाब फहीम रब्बानी साहब मौजूद हैं और शाहजहां रब्बानी साहब भी ये बात सोच रहे हैं कि मुझे भी अपने भाई के बाद सियासत में आना चाहिए। अगर आप जिला कोटली के अंदर चले जाएं तो फतेह मोहम्मद करेलवी साहब, जनाब सिकंदर याद साहब और फारूक सिकंदर साहब की सूरत में मौजूद है। थोड़ा आगे चले जाएं आप, चौधरी यासीन साहब के बाद उनका बेटा वो भी अब आमिर यासीन मेंबर असेंबली इलेक्ट हो गया है। जनाब नूर हुसैन साहब का बेटा बारिश सुल्तान और उनका बेटा यासिर सुल्तान भी मेंबर असेंबली बन गया है। मुझे बताएं कि जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं हमारे पास सड़क की सहूलत नहीं है, हमारे पास स्कूल की सहूलत नहीं है, हमारे पास बुनियादी सेहत की सहूलत मौजूद नहीं है, हमारे पास पीने का पानी मौजूद नहीं है। हम किस बुनियाद पे इनकी सपोर्ट कर रहे हैं? हम किस बुनियाद पे इनके साथ चल रहे हैं? हमारी तीसरी नस्ल को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हम सारे हैं कि इनके नारे लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि फलां साहब आएंगे तो ये कर देंगे। इन्होंने क्या किया है? जब जो पार्टी इख्तियार में जाने वाली होती है ये हालात के एतबार से उस पार्टी में चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि पिछली पार्टी ठीक नहीं थी, इस दफा जिस पार्टी में आया हूं इस दफा मैं यहाँ इस इलाके में दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा। ये आपके साथ इस दफा हुआ है या नहीं हुआ है? आप में से सारे लोग ने अपनी आंखों से देखा है। आप पाकिस्तान के अंदर देख लें, आजाद कश्मीर के अंदर जो लोग एक दूसरे के मुखालिफ खड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की सूरत में सारे इकट्ठे खड़े हैं। आपने देखा है कि पीडीएम की सूरत में जनाब आसिफ जरदारी साहब का बेटा जो है वो इस वक्त वजीर खारजा है। जनाब शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम है उनका बेटा वजीर आला है। जनाब फजल रहमान साहब का बेटा वजीर मौसमियात है। वहां पे सारे इकट्ठे हैं, सारे मिलकर चल रहे हैं। किस लिए? अपनी नस्लों को संवारने के लिए। मुझे बताएं कि जो सफेद रोश बुजुर्ग हैं, जो शायद हमसे पहले जाएं या बाद, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जिन्होंने उम्रें यहाँ पे गुजार दी हैं, मुझे वो सारे बुजुर्ग बताएं कि आप अपनी नौजवान नस्ल को क्या दे के जा रहे हैं इस सियासी सिस्टम में। मैं आपको फकत ये कहने आया हूं कि खुदा रहा इन सियासी जमातों से ऊपर उठ के सोचें, अपनी इस नौजवान नस्ल के लिए सोचें और वो उस बंदे के साथ चलें जो आपके हक की बात करता है, उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उसका साथ दें, उसके साथ खड़े हो जाएं। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आप लोग जिस तहरीक को लेकर चले हैं, अगर आप साबित कदम होकर चलें, खुदा की कसम इन हुक्मरानों में यह जान नहीं है कि आपकी सड़क ना देखते हैं। 1998 के अंदर सिकंदर हयात साहब के दौर के अंदर ये नोटिफिकेशन हुआ कि जिला टू जिला सारी रोडों को डबल किया जाए और ये जो हमारी कोटली पलंदरी रोड है इसको छोड़कर सारी रोडें डबल हो गई। 2017 के अंदर हम टालियन में एक दिन बैठे हुए थे, इस तरह कुछ दोस्तों से मुशावरत हुई, जुम्मे का दिन था, हमने कहा जी सड़क की तहरीक चलाते हैं। हमने इस सड़क की तहरीक चलाई और इसी तरह पहली मीटिंग करके टालियन के अंदर हमने लोगों को मुनज़्ज़म किया। फिर हम निकले, हम पत्थल में मीटिंग की, नालिया में मीटिंग की, हर एक इलाके में जाकर लोगों को उठाया। और जिस दिन हमने पलंदरी का रुख किया, खुदा की कसम मैं स्टूडेंट लाइफ से छोटी मोटी सियासत में पलंदरी में इन्वॉल्व हूं, लेकिन पलंदरी की तारीख में कभी बाहर से इतना बड़ा जुलूस किसी इशू के लिए पलंदरी नहीं आया। हमारे पास 200 मोटरसाइकिल था। जब हम पलंदरी के अंदर दाखिल हुए तो जो पलंदरी के अंदर बैठे हुए हैं हमारे सियासी नुमाइंदे, ये सारे उठ के हमारे पास चले आए और हमको चिट्ठे देने लगे, मुझे भी 2 मिनट बात करने का मौका दें। आप अगर इस तहरीक को चलाना चाहते हैं तो आप मुनज़्ज़म होकर इस तहरीक को चलाएं, किसी सियासी खड़पेंच की तरफ न देखें। अगर आज वो लोग आपके हमदर्द होते तो आपके दरमियान यहाँ बैठे होते और आपको कहते कि हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी है, हम आपके दरमियान मौजूद हैं, आपके साथ चलेंगे और जिस हद तक जाना पड़ा हम जाएंगे। आप इस तहरीक को चलाएं, आप एक एक फर्द तक जाएं, एक एक गांव तक जाएं, इस तरह मीटिंग्स करें। हमारे जो वहां पे जो प्रोग्राम हमने किया था उस प्रोग्राम में हमारे ट्रांसपोर्टरों ने दिल खोलकर सब लोगों को ट्रांसपोर्ट फ्री मुहैया की थी कि हम फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे, एक दिन के लिए पलंदरी चलेंगे। इस मुसीबत से अगर जान छुड़वाना चाहते हैं आप लोग आगे बढ़ें, हम पलंदरी में आपका इस्तकबाल करेंगे और जो मुश्किल से मुश्किल काम होगा हम आपसे आगे चलेंगे। अगर किसी ने गिरफ्तार किया पहले हमें गिरफ्तार करेगा, किसी ने लाठी चलाई तो पहले हम पे चलेगी, उसके बाद आप पे चलेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप लोग खड़े हो जाएं। आप अगर मुनज़्ज़म होकर आगे बढ़ेंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये लोग सारे जो हैं वो आपकी पांव की ठुकरों में होंगे। इंशाअल्लाह आपके पास यहाँ मोहम्मद हुसैन साहब भी आएंगे और सारे आके मिन्नतें करेंगे। एहतजाज में सड़क की तमीर के हवाले से मुकर्रीन का भरपूर मुतालबा था कि 2022 के बजट में इस सड़क को रखा जाए। सरदार मोहम्मद हुसैन इस सड़क को इस बजट में रखें। वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास इस तारीखी सड़क का मसला हल करें।
یہ سڑک بلند و بالا صحت افزا تاریخی سیاحتی مقامات مقبرہ غازی حسین، نہریاں یونیورسٹی، دیار بند پارک، ڈنہ، ناگیشور سے گزرتی ہے۔ ہر دور میں اس سڑک کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بروز جمعہ عوام کا پلندری بڑے احتجاجی پروگرام کا اعلان، مطالبات حل نہ ہونے کی صورت میں آزاد پتن بند، لانگ مارچ یا دھرنے کی منصوبہ بندی۔ سردار ارسلان نثار ایڈوکیٹ، سردار مظہر آفتاب، مولانا عبدالغفور، سردار الطاف، سردار ندیم، سردار مشتاق، سردار شہزاد، سردار سرفراز احمد صادق نے گفتگو کی۔ عوام اقتدار میں بیٹھے سیاستدانوں کے لیے یہ لمحہ فکر ہے۔ عوامی علاقہ کا مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس روڈ کو بنوایا جائے تاکہ عوام کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کیمرہ مین فہد مبارک کے ساتھ محمد ندیم، نہریاں نیوز۔